Hello students, today we are going to start exercise 6.2 of chapter 6. Chapter 6, Lines and Angles. Exercise 6.2. In exercise 6.2, we are going to discuss the problems based upon the parallel lines. So, the question number one is, I think first question has been done. First question, we have discussed the first question in live class. Now we are going to discuss it from the second question. Question number 2. The question number 2 is, in the figure 6.29, if AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. CD is parallel to EF. This is AB, CD and EF. These three lines are parallel to each other. If AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, then AB is also parallel to EF. ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी. अगर आपस में बीच में कनेक्शन है, AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, तो AB EF के भी पैरेलल हो जाएगा. Find and Y ratio Z. Y ratio Z is given 3:7. Find X. Let's see what is X here. There is a transversal naming. There is no name of the transversal. X, Y and this is Z. और यहाँ पर हमें Y और Z का रेशियो गिवन है 3:7. We have to find the value of X. तो देखो इसमें Y और Z, ये Y जो एंगल है और ये वाला एंगल है. वी नो दैट दीज आर टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो दिस विल ऑल्सो इक्वल टू Y. तो ये Y हो जाएगा, ये Z हो जाएगा. तो Y और Z अगर दोनों क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए ऑफ टू पैरेलल लाइंस CD एंड EF. तो Y और Z हमें सपोज करना पड़ेगा सबसे पहले. लेट द angles are 3x and 7x. Y is equals to 3x and Z is equals to 7x. तो यहाँ पे Y की वैल्यू 3x आ गई और Z की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7x. We know that the sum of interior angles is always supplementary. So the addition of Y plus Z will be equal to 180 degree. तो हम यहाँ लिखेंगे as CD is parallel to EF, so the sum of interior angles is 180 degree. That is Y plus Z is equals to 180 degree. Y is 3x and Z is 7x is equals to 180 degree. It means 3 plus 7 is 10. 10x is equals to 180 degree and x is equals to 180 upon 10, that is equals to 18 degree. So the value of x is here is 18 degree. ठीक है, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आ गई वो 3 into 18 आ जाएगी 54 and z की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 into 18 आ जाएगी 7 8 42 112. ठीक है, तो ये z और y की वैल्यू आ गई. बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, वी नो दैट अगेन दिस एंगल इज y. सो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा बिकॉज दीज एंगल्स आर ऑल्सो इंटीरियर एंगल्स एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी. सो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, अगर हम 180 में से एंगल y को माइनस कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा x. तो y को सब्ट्रैक्ट कर दो, y इज 54 डिग्री. सो यहाँ पे आ जाएगा 6 to 126. सो द वैल्यू ऑफ x इज 126. Similarly, you have to use the properties of interior angle, corresponding angle, alternate interior angles to find the various values of x, y and z. Now the next question. The next question is
Question number 3. Exercise 6.2. Question number 3. Question number 3 is, in the figure 6.30, AB is parallel to CD. It is given here AB is parallel to CD. Now, EF is perpendicular to CD. This is AB and this is CD. EF is perpendicular to CD. अब ये बोला हुआ है and GED, angle GED. Where is G? This one is G. G और F को ज्वाइन कर दिया. GE और D जो एंगल है, this is F and this is E. ठीक है, तो GED एंगल बोला. GED, this whole angle is 126 डिग्री. ये जो बड़ा वाला एंगल दिख रहा है 126 डिग्री दिख रहा है. फाइंड AGE, GEF and FGE. Let's find where is AGE, GEF and angle FGE. AGE एंगल कौन सा होगा? AG and E, ये वाला एंगल. एंगल 1 नाम दे दो उसको. ठीक है. Then GEF, GE and F, angle 2. FGE, FG and E, this one, angle 3. We have to find these 3 angles. Let's find out. देखो बच्चों, it is given that this is 90 degree. अब and the whole angle is 126 degree. If this is 126 and this is 90, then जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा? 126 minus 90. अब देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, एक और एंगल यहाँ पे जोड़ दिया, ये 126 हो गया. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 126 है, उसमें से इतना एंगल तो 90 है, तो जो बचा हुआ है वो क्या आ जाएगा? वो रिमेनिंग एंगल आ जाएगा, यानी एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी. तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में, वी नो दैट एंगल FED is equals to, this line is perpendicular to CD, so 90 डिग्री. यहाँ पे रीजन दे देंगे, FE is perpendicular to CD. So angle 2 is equals to angle GED minus angle FED. Angle GED, this whole angle, minus angle FED. FED माइनस कर दोगे तो एंगल 2 आ जाएगा. तो मैंने ये लिखा है, एंगल 2 क्या होगा? पूरा GED माइनस FED होगा. तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू GED. व्हाट इज GED है? 126 डिग्री माइनस FED. FED इज 90 डिग्री. तो 126 माइनस 90 इज 36 डिग्री. तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 36 डिग्री. तो हमने एक एंगल फाइंड कर लिया. दिस इज एंगल 2, दैट इज GEF. ठीक है. Now we are going to find angle 3. We know that this line is also perpendicular to this one. ये भी 90 डिग्री है. ये पूरी लाइन परपेंडिकुलर है इसके और इसके. तो ये 90 है और ये वाला भी 90, बिकॉज इस तरफ पर एंगल अगर 90 तो ये भी 90 होगा. ये 90 होगा. ये आपका हमने निकाला 36 डिग्री होगा. कैन यू फाइंड एंगल 3? इजीली यू कैन फाइंड एंगल 3. देयर इज वन मोर मेथड कि अगर आप ये वाला एंगल निकाल लेते हो तो ये वाला एंगल 3 के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. ठीक है, बट आई थिंक एंगल्स एंड प्रॉपर्टी भी इजी ही है. यू कैन फाइंड फ्रॉम दैट ऑल्सो. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल GEF ट्राइंगल से एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल GFE. एंगल GFE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. Angle 3 is, we don't know what is the value of angle 3, plus angle 2 we have found 36 degree plus GFE. GFE is 90 degree equals to 180 degree. Now angle 3 will be equal to 90 plus 36 is 126. 126 minus 180. 180 minus 126 will be equal to 4 then 7, 5, 54 degree. So the value of angle 3 is 54 degree. Now can you find angle 1? Angle 1 is same as the angle this one. देखो मैं सारे मिटा कर दिखाती हूँ. ये हमारा Z बन रहा है इस तरह से. ये वाला एंगल जो है, ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? Z बन रहा है.
और इस z में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और इस तरह से भी तो z बन रहा है, ये इस तरह से, तो इस तरह से एंगल 1 इसके इक्वल होगा। इट मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल 1? द वैल्यू ऑफ एंगल 1 विल बी 126 डिग्री। तो एंगल 1 आ जाएगा 126 डिग्री। और रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू अप्लाई 3 कंडीशंस। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढो, करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढो, लीनियर पेयर ढूंढो, या इंटीरियर एंगल्स ढूंढो। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री, उसके सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ओके बच्चे, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, in figure 6.31 figure में PQ is parallel to ST. PQ is parallel to ST. This is PQ and this is ST. Angle PQR, angle PQ and R ऐसा दिया हुआ है कुछ फिगर। PQR एंगल जो है वो आपका दिया 110 डिग्री का एंगल है। एंड RST दैट इज R, ये है RST इज 130 डिग्री। फाइंड QRS, यू हैव टू फाइंड QRS एंगल फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला एंगल फाइंड करना है तो यू शुड नो कि ये दोनों लाइन्स हमें पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट द पैरेलल लाइन्स। सो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाने टाइम में आप ये देखो, अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो, देन वी गेट वन ट्रांसवर्सल एंड सेकेंड ट्रांसवर्सल। ये एक ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, सेकेंड ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो पहली वाली ट्रांसवर्सल के केस में ये वाला जो एंगल आएगा वो 130 डिग्री आएगा। ओके, हमें ये एंगल फाइंड करना है। How can we find this angle? अगर ये वाला एंगल फाइंड करना है, we can find it by the angle sum property of this triangle. ठीक है, तो you can find this angle and this angle, then you can find this one. तो ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो, ये वाला एंगल निकाल सकते हो, फिर एंगल सम प्रॉपर्टीज ये वाला एंगल निकाल सकते हो। इट इज़ वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। ये 110 है, 180 टोटल आ जाएगा, तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। ये टोटल 180 है, तो 130 माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। 50 एंड 70 इज 120, 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो एंगल आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 60 डिग्री। ओरल क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। हाँ, पैरेलल लाइन का अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग यूज़ हो रहा है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंड ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। दूसरा तरीका बता रही हूँ, सेकेंड मेथड विल बी, दिस इज 110, दिस इज ऑल्सो 110। नाउ अगर ये 110 है तो सीधी सी बात है 70 डिग्री हो तो ये भी 70 होगा। ये 130 है, इसके बगल वाला एंगल कितना होगा, 50 होगा, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये वाले भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर 70 + 50 120 हो जाएगा। और इस वाले ट्रायंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इन दोनों का सम 120 डिग्री हो गया। 180 माइनस 120 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस क्वेश्चन यू विल डू इट इन योर होमवर्क। Question number 4 you have to do it in your homework copy, and question number 5 and question number we should discuss in live class also. So this is all for today. और जितना भी काम करा है do it in your classwork copy and this one in your homework copy.